Okay, hello and welcome to all of you again in our today's session. As you are aware, in our last lecture, we have started the topic of essential elements of the valid contract. And again, as I already told you that essential elements of valid contract get divided into the two parts. Okay, अगर एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो उस एग्रीमेंट में कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी है और उस इसेंशियल एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. ओके, one part is a section 10 of the Indian Contract Act. Okay, section 10 of Indian Contract Act gives us certain essential elements to make an agreement a valid contract. Okay, so 5 to 6 points are given in a section 10 of Indian Contract Act to make an agreement or to convert an agreement into a contract. और कुछ essential elements है जो section 10 में नहीं दिए गए, but still they are very important for making the valid contract. Okay, so we are going to deal with the essential elements of the valid contract, as you all know. And again, as you all are aware about this particular fact, just now we discussed that essential elements of valid contract get divided into the two part. दो part में उसको क्या किया गया, वहां पर divide किया गया. One part which are given in section 10 of Indian Contract Act, and one part which are not given in section 10 of Indian Contracts Act. Okay, so let's start with the essential elements of the valid contract. हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे start कर रहे हैं. Okay, all right, see, you can see essential elements of valid contract which we already started as given in section 10. जो है वो क्या जाता है, देखो वहाँ पे section 10 में दिए गए, and there must be agreement first of all. Then section 10 में दिया गया second point है कि parties must have the free consent, parties must have the capacity to make a valid contract, there must be a lawful consideration, there must be a lawful object, and your agreement should not be expressly declared to be void. Okay, these are 6 points which are given as essential elements of valid contract in section 10 of Indian Contract Act. Okay, and not given in section 10, but still these are considered to be an important part of the essential elements of valid contract, right? There must be two parties. Parties must have intention to create a legal relationship. Then certain legal formalities if statute prescribe, that legal formalities must have been complied with. Okay, then the terms of agreement must be certain, and the agreement must be of a nature which is capable of being performed, that is possibility of performance. Okay, so these all 5 points, they're not given in Indian Contract Act, section 10, but still they are a part and parcel of the Indian Contract Act. Okay, and therefore they're essential for making a valid contract. Okay, so let's start with essential elements of valid contract. Some we already discussed. Okay, so we'll just go through the revision of the points we have discussed. As you are knowing that section 10 of Indian Contract Act क्या कहता है, all agreements are contracts. Okay, they are made with the free consent of the parties. Parties की क्या चाहिए, हमें free consent चाहिए, competent to contract for a lawful consideration with the lawful object, and they are not expressly declared to be void. Okay, so अगर agreement को contract बनना है तो section 10 बताता है कि contract must have been made by the parties who are competent to contract with the free consent for a lawful consideration for a lawful object. And agreement should not be the one which is expressly declared to be void. Okay, so we started number 1 point which is required for the creation of valid contract. क्या चाहिए बताओ, वहाँ पे कम से कम दो parties का होना जरूरी है. Okay, so as already told you that I cannot make a contract with myself. If I want to make a contract with party should be there who is going to make an offer, and the other party should be there who is going to give the acceptance. Okay, so contract can be made by the natural person, or even a contract can be made by any company also. If I'm purchasing the mobile of the Jio, then that is also considered as a contract. One party is a natural person, that is me. Another party is the Reliance, that is the legal person, that is the company. Two parties are there, and we can make a contract with each other. Okay, so contract can be made by the legal person also, or a contract can be made by the natural person also. What is important is that the parties must be ascertainable. Now, a very famous example given in the model is to constitute the contract of the sale, there must be the two parties. Okay, one who is a seller and another who is a buyer. एक होगा seller, दूसरा कौन होगा, बोलो buyer वहाँ पे होगा. So seller and buyer must be the two different person. वही व्यक्ति seller है और वही व्यक्ति buyer है, ऐसे कभी हो नहीं सकता है. So for creation of valid contract, what is required?
two parties must be there. Okay, so we discussed a very famous case law on this particular point. If you all remember, State of Gujarat versus Ramanlal. क्या हो गया था इसमें, बताओ, याद है आप सबको? रिमेम्बर करो, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म करना था ना। पार्टनर्स की जो प्रॉपर्टी होती है पार्टनरशिप फर्म की, वो प्रॉपर्टी कैसी होती है बोलो, उनका जॉइंट एसेट होता है। अब किसी वजह से उन लोगों का नहीं बना तो उन लोगों को फर्म क्या करनी थी बोलो, डिसॉल्व करनी थी। तो फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं वो और अपना असेट डिस्ट्रीब्यूट करके ले रहे हैं। तो असेट डिस्ट्रीब्यूट करके ले रहे तो क्या करे बोलो, जस्ट अ सिंपल थिंग हैज बीन देयर। ओके, पहले जो प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप की थी, पहले जो प्रॉपर्टी क्या थी बोलो, वहां पे जॉइंट ओनरशिप की थी, बस उस जॉइंट ओनरशिप वाले प्रॉपर्टी को वो क्या कर रहे हैं, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करके ले रहे। मतलब जो उनका सबका था वो अपना अपना करके डिवाइड करके ले रहे, राइट। तो यहाँ पे कोई किसी को प्रॉपर्टी बेच रहा है क्या? नो। हाँ, टू पर्सन्स दिख रहे हैं क्या हमें, सेलर बायर? नो, बस जॉइंट ओनरशिप को क्या कर रहा है, वहां पे डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करके लिया जा रहा है वहां पे। हाँ, सो इट वाज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस कि यहाँ पे सेल टैक्स ऑफिसर सेल के ट्रांजैक्शन का जो टैक्स होता है वो मांग रहा था। इट वाज हेल्ड कि दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लायबल टू पे एनी सेल टैक्स टू द सेल टैक्स ऑफिसर, क्योंकि बेसिकली ये सेल ही नहीं है, क्योंकि सेल कॉन्ट्रैक्ट कमिट करने के लिए टू पार्टीज की रिक्वायरमेंट है, सेलर बायर, और यहाँ पे दो पार्टीज है ही नहीं। हाँ, when on a dissolution of a partnership, the assets of the firm were divided among the partner. Cell tax officer ने क्या मांगा वहाँ पे? They asked for a tax. It was held in this particular case that it's not sell. ये क्या नहीं है बोलो, sell नहीं है। The partner being a joint owner है वो वहाँ पे। हाँ, और बस उस joint owner को वो assets को divide करके ले रहे। So यहाँ पे वो लोग seller और buyer दोनों नहीं हो सकते। So two parties missing है, तो यहाँ पे contract नहीं है, just they are making the dissolution of a partnership firm and thereby making a distribution of their assets, dividing the joint ownership property into the separate ownership. That's it. Then number 2 point क्या discuss किया था हमने, देखो number 2 point we discussed was that parties must have the intention to create legal relationship. Valid contract को create करने के लिए क्या चाहिए हमें, parties का intention to create legal relationship. हाँ, whenever we make an offer and the other party given acceptance, हाँ, क्या create हो जाता है बोलो, agreement तो create हो जाता है, no issue. हाँ, but this agreement may be social agreement और agreement may be a domestic agreement. हाँ, तो ये जो social या domestic type of agreements होते हैं, they are not enforceable in the court of law. वो कोर्ट में क्या नहीं है बोलो, enforceable नहीं है। क्यों कोर्ट में enforceable नहीं है this type of agreements? Because यहाँ पे जो पार्टीज है वो पार्टीज का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मिसिंग है। हाँ, सो देखो इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट a very famous case law we discussed, okay, and that famous case law we discussed was that Balfour versus Balfour वाला केस हमने क्या किया, डिस्कस किया। What happened in this particular case? Husband agreed to pay certain amount of a maintenance to the wife, who was actually residing abroad. Okay, तो husband किसी वजह से वो अमाउंट पे करने के लिए फेल हो गया, तो वाइफ ने वहां पे इमीडिएटली सूट फाइल कर दी फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट. इट वाज हेल्ड दैट वाइफ कुड नॉट रिकवर द अमाउंट बिकॉज इट वाज जस्ट अ सोशल एग्रीमेंट. ये जस्ट क्या था, सोशल एग्रीमेंट. और क्या मिसिंग था यहाँ पे बोलो, द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप. सो फॉर क्रिएशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, वी डिस्कस कि लेखपाल प्रॉमिस्ड हिज सन that he clears CA examination, he will pay him rupees 5 lakh. Now on passing the examination, son claims the money from father. It was held that the son cannot recover the money because again reason देना हमें, this is a social agreement. The parties did not have the intention to create legal relationship. Okay, so therefore there is no contract. Then another example हमने देखा जिसमें clear business transaction था, right? जैसे कि A sold a goods to the B on a condition कि उसके पैसे उसको 30 दिन के अंदर अंदर देने चाहिए. यहाँ पे क्लियर एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो गया ना. सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है. अगर ऑन फेल्यूर बाय द बी फॉर मेकिंग अ पेमेंट ऑन द ड्यू डेट, बी अगर वो टाइम में पैसे देने से फेल हो जाता है तो ए कोर्ट में क्या कर सकता है बोलो, एक्शन ले सकता है. Now then third essential element of valid contract not given in section 10 we discussed that अगर स्टैट्यूट प्रिस्क्राइब करता है तो हाँ कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज का कंप्लीट करना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएशन के लिए इसेंशियल होता है. बी क्लियर विद द पॉइंट. हाँ, कि कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली तो बात करें
अगर हम तो रिटर्न या स्पोकन हो सकता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न किया या कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ऑफ माउथ से किया आपने। हाँ, मुझे आपको कोई सिंपल ड्रेस मटेरियल सेल करना है, उसके लिए किसी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत है क्या? मुझे नहीं। हाँ, मुझे अगर आपको कोई कैमरा सेल करना है, उसके लिए किसी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत है क्या? मुझे नहीं। सो इन अ जनरल तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्ड ऑफ माउथ भी कर सकते हैं या रिटर्न भी कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बट जनरली हम कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्म में रखे तो वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी बेहतर रहता है। बट अगर किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूट, कोई स्पेसिफिक लीगल फॉर्मेलिटीज प्रिस्क्राइब करता है, देन to make a contract, to make an agreement enforceable, that legal formalities must have been complied with. Okay, जैसे कि for example, if I want to sell you my house, that is I'm going to sell you a immobile property, a transaction of immobile property come under Transfer of Property Act. Okay, and Transfer of Property Act says that to sell a immobile property you must make a written agreement which must be registered, which must be on the stamp paper, there must be witnesses. तो अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा तो सारे एसेंशियल कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि लॉ बताता है, क्योंकि स्टैट्यूट बताता है। तो बी क्लियर, अगर स्टैट्यूट में दिया है तो आपको लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स नहीं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कंपलसरी कैसा होना चाहिए बोलो? रिटर्न, और वो भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में उनके डिसाइडेड फॉर्म पे ही होना चाहिए वहां पे। हाँ, सो इन अ सिंपल, इफ यू वांट टू मेक अ immobile properties registration etc, then you must fulfill the statutory requirement given, like a writing, presence of witnesses, registration of documents etc. Then the fourth essential element for the creation of a valid contract which is required is that one, the terms of your agreement must be certain. आपके agreement के जो terms है वो terms कैसे होने चाहिए बोलो? क्लियर होने चाहिए, वेग नहीं होने चाहिए। हाँ, एकदम सामने वाले को आप स्पष्ट भाषा में बताओ कि आप क्या बेच रहे हो, कितना बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वट एवर। ओके, इफ आई एम गोइंग टू सेल यू 1 acre of a land, I must specify 1 acre of a land bounded by this, in this particular area. So whatever you are going to make a contract, the terms of your contract must be very clear, very certain. अगर वो वेग है तो वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा, वो वॉइड एग्रीमेंट होगा और वहां पे वो खत्म हो जाएगा। ओके, सो एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव द सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। क्या होना चाहिए? वो एग्रीमेंट का मीनिंग सर्टन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। हाँ, देखो, ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन ऑफ ऑयल। ए बी को क्या एग्री करता है बोलो? कि मैं आपको 100 टन ऑफ ऑयल बेचूंगा। हाँ, नाउ अगर उस बी के शॉप में ग्राउंड एंड ऑयल है सेल करने को, हाँ, ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन ऑफ ऑयल। ओके, ए दुकानदार है, बी को तो क्या कर रहा है? वो 100 टन ऑफ ऑयल सेल कर रहा है। और अगर ए के शॉप में ना शिंगदाना तेल है, ग्राउंडेड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, हाँ, राई का तेल है जैसे समझो, देन कोकोनट ऑयल है, खोबरे का तेल है। इन ऑल पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होगा बोलो? उसने बताया नहीं कि कौन सा तेल, तो ये एग्रीमेंट वैलिड होगा क्या? नहीं, क्योंकि आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली कौन सा तेल आपको बेचना है। राइट नाउ अनदर एग्जांपल इज दैट वन, XYZ is making a lease of his land. लीज मतलब किराए से दे रहा है फॉर इंडेफिनिट पीरियड। इंडेफिनिट पीरियड नहीं ना, आपको 1 महीना आप किराए पे घर दे रहे हो, 1 महीना लिखो। आप 1 साल के लिए दे रहे हो, 1 साल के लिए लिखो। आप 11 महीनों के लिए दे रहे हो, आप 11 महीनों के लिए लिखो। बट टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट योर टर्म्स मस्ट बी सर्टेन, इट मस्ट बी क्लियर। हाँ, सो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड क्योंकि यहाँ पे जो पीरियड है, पीरियड ऑफ लीज क्या नहीं किया बोलो? वहां पे मेंशन किया हुआ नहीं है। देन नेक्स्ट वन देखो, टर्म्स ऑफ योर एग्रीमेंट कैसे होने चाहिए बोलो? दे मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। परफॉर्म करने के लिए केपेबल चाहिए। हाँ, सपोज आई जस्ट टोल्ड यू एज एन एग्जांपल कि इफ यू आर मेकिंग एन एग्रीमेंट व्हिच इज इन इटसेल्फ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो परफॉर्म करने के लिए बेसिकली इम्पॉसिबल है, तो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। हमेशा याद रखो, अ प्रॉमिस टू मेक अ इम्पॉसिबल थिंग इज कंसिडर्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट। वो शुरू से ही क्या रहेगा बोलो? वहां पे वॉइड एग्रीमेंट कंसिडर किया जाएगा। सो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट कैसे होने चाहिए बोलो? दे मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। परफॉर्म करने के लिए केपेबल होने चाहिए। इम्पॉसिबल एक्ट अगर है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा, वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होगा।
जैसे कि वी जस्ट डिस्कस्ड एज एन एग्जांपल, ए एग्रीज टू पुट अ लाइफ इनटू द डेड वाइफ ऑफ अ बी। ए एग्री करता है कि वो बी के मरे हुए वाइफ को क्या करेगा, वहां पर जिंदा करेगा। नाउ इज इट पॉसिबल कि किसी के मरे हुए फैमिली मेंबर को जिंदा करना? अगेन रीजन इज अ नो। हाँ, सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस this agreement is not enforceable in the court of law because agreement is a in itself क्या है बोलो, impossible to perform करने के लिए वो impossible है। देन देखो क्या गया, हमने मॉड्यूल वाला भी एग्जांपल देखना है। ए ने बी को एग्री किया कि वो उसको खजीना ढूंढ के देगा जादू से। ए एग्रीज टू द बी टू डिस्कवर द ट्रेजर बाय मैजिक। Now again, is it like practically possible to find out the treasure by magic? That is good into the stories। हाँ, फेरी स्टोरीज में, परी वाले स्टोरीज में अच्छा लगता है कि उसने वो जादू की और खजीना मिल गया एंड ऑल दैट एक्सेट्रा। बट इन रियलिटी ये सारी चीजें पॉसिबल है क्या वहां पे? नहीं, द एग्रीमेंट इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ। ओके, सो देयरफॉर द एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड क्योंकि वो पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं है वहां पे। बट द पॉइंट, सो these all points, 5 things we discussed as an essential element of valid contract, which are not even in an Indian Contract Act section 10, still they are considered to be important essential elements of valid contract। क्या क्या देखा हमने, डिस्कस है सबको। अभी जो सेक्शन 10 में नहीं दिए थे वो essential elements हमने क्या किया, अभी डिस्कस किए वहां पे। हाँ, जैसे कि यो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होने चाहिए, हाँ वो होने चाहिए सर्टन। Then you must have the intention to create legal relationship, okay, and then some legal formalities need to be complied with if prescribed by the statute। Then the agreement should be one which is capable of being performed, okay। तो ऐसे जो two parties required, intention to create legal relationship is required। Then next one, certainty of meaning is required, some legal formalities required if prescribed by the statute, and possibility of performance required। These 5 things which are not in section 10 of Indian Contract Act but are important essential element of a valid contract, okay। Then section 10 जो है वो section 10 भी कुछ essential elements of valid contract बताता है, right? Now number 1 thing which is required for a making of valid contract given in section 10 of Indian Contract Act है number 1 offer and acceptance। हाँ, मतलब ही क्या गया बोलो वहां पे, agreement। See, agreement is a very essential for creation of a valid contract, क्योंकि आप सबको याद है सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुद बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलो, एक एग्रीमेंट है जिसको लॉ क्या करता है वहां पे एनफोर्स करता है। तो अगर पहले एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, ओके। सो फॉर मेकिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या चाहिए, एग्रीमेंट। नाउ एज यू आर अवेयर अगेन, एग्रीमेंट क्या है बोलो, याद है आप सबको डेफिनेशन एग्रीमेंट की, every promise and every set of promises forming consideration for each other is called as an agreement। हाँ, और promise कैसे बनता था याद है आप सबको, accepted proposal। मैंने आपको पूछा would you like to sell your car to me for rupees 5 lakh, I made an offer, you said yes ma'am we would like to sell you our car for rupees 5 lakh। हाँ, then you gave an acceptance, offer plus acceptance is equal to क्या बन गया बोलो वहां पे, एग्रीमेंट वहां पे क्रिएट हो गया, प्रॉमिस क्रिएट हो गया। एंड प्रॉमिस मतलब ही क्या होता है वहां पे, एग्रीमेंट होता है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, हाँ तो क्या होगा बोलो वहां पे, एग्रीमेंट मतलब एक्सेप्टेड प्रपोजल, एग्रीमेंट मतलब एक्सेप्टेंस, हाँ एंड ऑफर। once an offer is made and another party given acceptance, क्या क्रिएट हो गया बोलो वहां पे, agreement is said to be created, okay। So for creation of a valid contract, क्या चाहिए देखो, first essential element which is given in section 10 is the agreement। An agreement is a first essential element as per section 2E। every promise and every set of promises forming consideration for each other is considered as an agreement। हाँ, and promise मतलब क्या, एक्सेप्टेड प्रपोजल। सेक्शन 2B में आपको पता है किस चीज की डेफिनेशन दी हुई है, प्रॉमिस की। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स द प्रॉमिस। प्रपोजल जैसे एक्सेप्ट हो गया क्या बन गया बोलो, प्रॉमिस बन गया। सो सिंपल भाषा में बात करें तो एग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट क्या बोलो वहां पे, ऑफर और एक्सेप्टेंस का आउटकम है वहां पे। हाँ, जैसे कि मैंने क्या कर दिया बोलो वहां पे, अमेज़न पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर दिया,
ऐड टू कार्ट कर दिया मतलब मैंने क्या कर दिया बोलो वहां पे ऑफर कर दी, और अमेजोन ने मेरी ऑर्डर एक्सेप्ट कर ली मतलब अमेजोन ने मुझे क्या दे दिया बोलो वहां पे एक्सेप्टेंस दे दिया। हाँ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा बोलो वहां पे एग्रीमेंट वहां पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हाँ, नाउ द सेकंड थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड as per section 10 of Indian Contract Act for the creation of a valid contract is that free consent। देखो हम जब कॉन्ट्रैक्ट वर्ड की बात करते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड में कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक वर्ड ये आता है ना कि दोनों की इच्छा चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इफ आई एम ओनली पर्सन हु वांट टू परचेस योर कार एंड यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन सेलिंग योर कार, is it possible to make a contract in this particular situation? Answer will be no, because when we want to make a contract, the consensus मतलब सहमति हाँ हाँ of both the parties is very essential। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो दोनों पार्टी का हाँ बोलना बहुत मैटर करता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल keep inside your mind that when we want to make a contract there must be first of all consent। क्या चाहिए बोलो, दोनों पार्टी का हाँ चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस देना ना, एक्सेप्टेंस देने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने वाला है ना वहां पे। तो एक्सेप्टेंस मतलब क्या आ जाएगा बोलो हाँ, और ऑफर में भी पहले पूछा है तभी एक्सेप्टेंस आएगा ना। तो जब पार्टी ऑफर कर रही है मतलब उसका भी क्या बोलो वहां पे हाँ। तो एक इम्प्लाइड सी चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी का हाँ बोलना, दोनों पार्टी की इच्छा से ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। A contract get created only with the free will of the both the parties। Okay, but now I'll just give you one particular example। मैं आपको ना एक example देती हूँ and then we will come into module again। हाँ, now in that particular example you can see कि suppose one person called Amit is there as usual। हमारा जो एग्जाम्पल वाला अमित है, हाँ यहाँ पे सपोज इस साइड में अमित खड़ा है, जिस दिस हैंड इज ऑफ अमित। हाँ, वन पर्सन इज देयर एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन क्या वहां पे अमित इज देयर। हाँ, ये जो अमित है, हाँ अमित, दिस वांट टू परचेस, इस अमित को क्या करना है उसको परचेस करना है इस पर्टिकुलर पर्सन कॉल्ड एज भावेन। भावेन का मोबाइल उसको परचेस करना है। हाँ, अब भावेन का मोबाइल जो है वो भावेन का मोबाइल है एप्पल का, कॉस्टिंग ₹90,000। कितने रुपए का मोबाइल था ये मार्केट रेट के हिसाब से? उसका जो मोबाइल है वो मोबाइल था 90,000 रुपए का मोबाइल था। हाँ, नाउ दिस पर्सन अमित कीप अ गन ऑन द हेड ऑफ द भावेन। अमित ने क्या किया, भावेन के हेड पे गन रख दिया और उसको बोला कि भावेन, वुड यू लाइक टू सेल योर एप्पल मोबाइल फोन costing 90,000 as you know to me for ₹9,000। भावेन, आपका 90,000 का एप्पल फोन मुझे आप 9,000 में क्या करो, सेल करो। ऑफ कोर्स विद द फियर ऑफ द लाइफ, जिंदगी के डर से इस भावेन ने क्या कर दिया बोलो हाँ बोल दिया। हाँ, नाउ बाद में भावेन ये मोबाइल देने से क्या करता है, मना कर देता है अमित को। हाँ, तो क्या अमित इस दिस पर्टिकुलर सिचुएशन में भावेन पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूट जो है वो फाइल कर सकता है क्या? हाँ, क्या इस दिस पर्टिकुलर सिचुएशन में अमित जो है वो भावेन पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूट फाइल कर सकता है क्या? व्हाट डू यू ऑल थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि अगर यहाँ पे कंसेंट तो है पार्टी की, राइट, बट कंसेंट फ्रीली दिए क्या बोलो भावेन ने वहां पे? नहीं, भावेन ने कंसेंट कैसे दिए बताओ? यहाँ पे भावेन गेव अ कंसेंट under the fear of the life, right? So Bhavin did not give the consent freely। Bhavin ने अपनी इच्छा से हाँ नहीं बोला, Bhavin gave a हाँ on the fear। What is that particular fear? That if I didn't give a हाँ then Amit will kill me। तो under this particular fear is Bhavin ने क्या बोला वहां पे हाँ बोला है। तो can we say that there is a free consent of the parties? Answer is a no। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में भले ही कंसेंट है बट वो कंसेंट कैसी नहीं है बोलो, फ्री नहीं है। हाँ, सो आवर लॉ सेज दैट फॉर क्रिएशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज मस्ट गिव द कंसेंट फ्रीली। पार्टीज को कंसेंट कैसी देनी है बोलो, फ्री कंसेंट वहां पे देंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल
we'll try and understand what is mean by the word consent, क्योंकि free consent तो बाद में आएगा ना, हमें पहले क्या देखना पड़ेगा, बोलो meaning of the word consent देखना पड़ेगा. Let's see, 2 or more person are said to consent. हाँ, ये कंपल्सरी याद रखना आपको. When they agree upon same thing in the same sense. Did you remember example? I have 3 cars, okay, and we didn't mention in the contract which one car we want to sell, okay, and I am thinking that I am going to sell you a red car, and you are thinking that you are going to purchase the grey car. तो यहाँ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा क्या वहां पे? नहीं. हाँ, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए. और पार्टीज की कंसेंट है हम कैसे बोल सकते, बोलो जब पार्टी एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस, तभी वहां पे पार्टीज की कंसेंट हम लोग बोल सकते हैं. नाउ दिस कैन बी अंडरस्टूड एज आइडेंटिफाई फॉर माइंड इन अंडरस्टैंडिंग द टर्म. हाँ, ये वर्ड कंपल्सरी फ्रेज याद रखो, मैंने आपको एक बार बताया था. इफ यू रिमेम्बर दैट इन योर स्टडी मॉड्यूल यू आर गोइंग टू हैव सम लैटिन फ्रेजेस. ये लैटिन फ्रेज हम फर्स्ट आ रही है, कंसेंसस एडिडम. अंडरलाइन करके रखो, उसका मीनिंग भी नोटबुक में नोट डाउन करके रखो. कंसेंसस एडिडम मतलब क्या, बोलो एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस. हाँ, उसी चीज पे जब पार्टी एग्री होते हैं सेम तरीके से, तब हम बोल सकते कि उनका कंसेंसस एडिडम है. हाँ, फर्दर अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे. कंसेंट तो है, भावेन ने हाँ तो बोला, बट क्या भावेन का हाँ अपने मन से था, अपनी इच्छा से था? नो, भावेन gave the consent under the fear of a death, right? Under the fear of a gun. उसने हाँ बोला, तो वो consent कैसा नहीं है, बोलो फ्री नहीं है. Now what the law says that only consent for making a valid contract is not enough. Further, such a consent कैसी होनी चाहिए, देखो फ्री. फ्री मतलब अपनी इच्छा से हाँ उसने बोला है. Consent would be considered as a free. ये कंपल्सरी याद रखना है. अब आपको ये जो पॉइंट्स है इस पे आपको डिटेल में स्टडी करना है आगे. एक एक चैप्टर हाँ के एक एक पॉइंट्स 5-6 पेजेस के एक एक मुद्दे पे हमें क्या आने वाले हैं, अंदर आने वाले. ओके, सो कंसेंट कब बोली जाएगी? फ्री नहीं है वहां पे, अगर आपकी कंसेंट कॉज की गई है कोर्शन से, अंडू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से या मिस्टेक से अगर कंसेंट ली गई है तो दैट कंसेंट इज सेड टू बी नॉट फ्री. अब याद रखो यहाँ पे मैं आपको सेक्शन का सीक्वेंस एक मिनट बताती हूँ. हाँ, एंड देन हम लोग इसकी मीनिंग को वापस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. हाँ, देखो जस्ट अगर पेन एंड नोटबुक लेके बैठे हो तो मेंशन करके रखो, समझो ये सीक्वेंस हम आसानी से याद रख सकते हैं. हाँ, देखो सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द टर्म कंसेंट. कंसेंट वर्ड कहाँ पर डिफाइन किया गया? सेक्शन 13 में. फ्री कंसेंट वर्ड डिफाइन किया गया सेक्शन 14 में. सेक्शन 14 में कौन सा वर्ड डिफाइन किया गया? फ्री कंसेंट. हाँ, कोर्शन यहाँ पे भी मेंशन करो या मॉड्यूल आपके नोटबुक में लिख के रखो. कोर्शन सेक्शन 15, अंडू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18, 19 ड्रॉप करना है, मिस्टेक 20, 21 एंड 22. ध्यान में आ रहा है? कंसेंट की जो डेफिनेशन है कंसेंट, हाँ, वर्ड कंसेंट डिफाइन इन सेक्शन 13. देन फ्री कंसेंट जो है, फ्री कंसेंट डिफाइन इन सेक्शन 14. एंड व्हेन कंसेंट इज सेड टू बी नॉट फ्री इफ इट इज कॉज्ड बाय कोercion सेक्शन 15, अंडर इन्फ्लुएंस 16, फ्रॉड 17, मिसरिप्रेजेंटेशन 18, 19 को ड्रॉप करना है, मिस्टेक क्या आ जाएगा वहां पे 20, 21, 22. ये तीनों सेक्शन किसके बोलो? मिस्टेक के. तो यहीं पे कंसेंट वाले चैप्टर में सेक्शन 13 से लेकर 23-22 तक पूरे सेक्शन किसके बोलो वहां पे? कंसेंट वाले चैप्टर के. हाँ, अब आते हैं हम लोग इस पॉइंट पे कि सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कंसेंट इज सेड टू बी नॉट फ्री इफ इट इज कॉज्ड बाय कोercion. अभी के लिए मैं आपको जनरल मीनिंग बता रही हूँ इन सारे वर्ड्स का, अंदर हम इसको बहुत डीप में डिस्कस करने वाले हैं. कोercion मतलब फिजिकल फोर्स. कोercion मतलब याद रखो, अंडरलाइन करके रखो. देन आपके नोटबुक में मीनिंग चाहो तो आप लिख के रखो. कोercion मतलब क्या आ गया बोलो? फिजिकल फोर्स. इफ अ पर्सन टेक अ कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन अंडर द फियर of a violence, physical hurt, etc. Or under the fear of a kidnapping or under the fear of any kind of the physical force, then the consent is said to be not free. क्यों free नहीं है बोलो वहां पे?
क्योंकि वहां पे क्या कॉज हो गया, कोर्शन। हाँ, कोर्शन, कोर्शन मतलब फिजिकल फोर्स यूज करके हाँ लेना। देन अनड्यू इन्फ्लुएंस। हाँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, देखो एक व्यक्ति के लाइफ में आपका इन्फ्लुएंस है, से फॉर एग्जांपल एज अ टीचर आई हैव एन इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ, हाँ, and I'm making undue use of that particular influence to take your consent for that particular contract. उस कॉन्ट्रैक्ट को हाँ बुलवाने के लिए मेरा जो आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस है, उस इन्फ्लुएंस का मैं गलत फायदा उठा रही हूँ, दैट इज कंसिडर्ड एज अंडर इन्फ्लुएंस। हाँ, और आपका गलत फायदा उठा के मैंने आपसे हाँ बुलवा के लिया, देन दैट इज कंसिडर्ड एज अंडर इन्फ्लुएंस। देखो यहाँ पे फिजिकल फोर्स है और यहाँ पे मॉरल फोर्स है। जैसे कि एग्जांपल देखो, मैं आपके कॉलेज की टीचर हूँ, 1 मिनट के लिए कंसिडर करो, हाँ, और ना मैं आपका शॉप है कोई मोबाइल शॉप, और मैं आपके शॉप में आई हूँ और आपकी शॉप में आके मैंने आपको बोला कि ये मोबाइल कितने का है, आपने बोला 30,000 रुपए का। मैंने बोला देखो 10,000 रुपए में दे दो, आपके एग्जाम की जो इंटरनल मार्क्स है वो भी मेरे पास ही होते हैं। हाँ, देखो आप सोचो क्या करना है आपको, दे दो 10,000 में। दैट मीन्स आपके लाइफ में जो मेरा इन्फ्लुएंस है, उस इन्फ्लुएंस का मैं गलत फायदा उठा रही हूँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस हाँ यूज कर रही हूँ और आपके हाँ ले रही हो। ये फिजिकल फोर्स है, बॉडी पे फोर्स यूज करते हो, और यहाँ पे आप मॉरल फोर्स क्या करते हो, यूज करते हो। हाँ, तो वो हाँ भी क्या नहीं है, बोलो फ्री नहीं है, वो हाँ भी कैसा दिया हुआ है वहां पे, दैट हाँ इज ऑल्सो गिवन अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस। देन देखो सपोज फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों का साथ में एग्जांपल आपको बताती हूँ मैं। हाँ, सपोज व्हाट हैपन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कि आई हैव वन मोबाइल विच इज एप्पल मोबाइल। हाँ, लेकिन बाहर से बॉडी एप्पल की है और अंदर से पूरा जो कंटेंट है, वो कंटेंट जो अंदर का यूज किया गया है, जो भी मटेरियल है वो पूरा है कोई लोकल असेंबल्ड या किसी और कंपनी का मोबाइल का मटेरियल यूज किया है, और मुझे ये पता है, फिर भी मैं आपको मोबाइल बेच रही हूँ सेइंग कि इट इज एप्पल मोबाइल। हाँ, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रॉड। आपके हाँ फ्री नहीं है ना, आपने एप्पल मोबाइल लेने के लिए हाँ बोला, बट क्या सोच के आपने एप्पल मोबाइल लेने को हाँ बोला, बोलो दैट इज एप्पल मोबाइल, बट इन रियलिटी वो एप्पल का मोबाइल है ही नहीं ना। मैंने आपको क्या किया, बोलो फंसाया है, मैंने आपको फ्रॉड किया आपके साथ। सो व्हेन वन पर्सन मेक्स अ इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट करता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, बोलो फ्रॉड कमिट होता है। इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट होगा तो क्या होगा, फ्रॉड होगा। हाँ, बट अगर जिससे मैंने मोबाइल लिया था ना, मैंने भी वो मोबाइल सेकेंड हैंड लिया, and the person from whom I took that particular mobile told me that is Apple, so I think that is Apple, so I told you that is Apple. तो यहाँ पे but that is not Apple. इन रियलिटी फैक्ट वही है वापस, हाँ, कि वो एप्पल है नहीं, तो मैंने झूठ बोला आपके साथ कि वो एप्पल है, बट वो झूठ कैसा बोलो, इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। आई ऑल्सो डोंट नो दैट द मोबाइल इज नॉट ऑफ एप्पल, राइट। तो यहाँ पे भी कंसेंट फ्री नहीं है ना, क्योंकि भले ही आपको पता है या नहीं पता है, इससे ये फैक्ट नहीं बदलेगा ना कि वो मोबाइल एप्पल का नहीं है। हाँ, तो जब पार्टी आपकी कंसेंट लेने के लिए इंटेंशनली फॉल्स स्टेटमेंट करता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड, एंड इनोसेंटली फॉल्स स्टेटमेंट करता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन कंसिडर किया जाता है वहां पे। हाँ, एंड लास्ट पॉइंट क्या आ जाता है, देखो मिस्टेक। मिस्टेक मतलब क्या है, देखो सिंपली वो वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, आई थिंक आई एम गोइंग टू सेल यू अ रेड कार एंड यू आर थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू परचेज द ग्रे कार, तो दैट इज एरर ऑफ थॉट, दैट इज एरर ऑफ थॉट। तो अगेन आपकी कंसेंट फ्री नहीं है ना, मैंने हाँ बोला है कार बेचने के लिए सोच के कि आई एम सेलिंग रेड कार, आपने हाँ बोला है कार लेने के लिए थिंकिंग की यू आर परचेसिंग द ग्रे कार, मतलब जो हमारा हाँ है वो किसी और चीज के लिए और एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट किसी और चीज के लिए हो रहा है। हाँ, सो अगेन देयर द कंसेंट इज सेड टू बी नॉट फ्री। ओके, सो सेक्शन 13 defines the term consent. Two parties when agree upon same thing in the same sense, then only they are said to have the consent. Okay, consent enough नहीं है, consent must be free. Section 14 defines the pre-consent, and section 14 says कि consent is said to be not free if it is caused by coercion, physical force use करना, under influence moral force use करना consent लेने के लिए, fraud जानबूझ के झूठ बोलना consent लेने के लिए, misrepresentation innocently झूठ बोलना consent लेने के लिए, mistake error of thought। under either of this five अगर आपका हाँ आया है तो वो हाँ क्या नहीं है, बोलो आपका हाँ फ्री नहीं है। हाँ, let's take as an example. A who owns a car, two car, selling red car to the B
and B is thinking that he's purchasing the black car. Same example as I given you. There is no consensus added on क्योंकि they did not agree upon same thing ना. एक को लग रहा है रेड कार, दूसरे को लग रहा है ब्लैक कार, so they are not agreeing upon same thing. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं क्रिएट होगा क्योंकि कंसेंट ही नहीं है. So to determine consensus added on, the language of the contract should be clearly drafted. इसके लिए बहुत जरूरी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए. Thus, if A says, "Will you buy my red car for ₹3 lakh?" and B says yes, there is consensus added on क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लैंग्वेज में पार्टी एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस बाय बोथ द पार्टीज. दोनों वही चीज ले रहे हैं ना. Would you like to purchase my red car for ₹3 lakh? And he's saying yes, I'm ready to purchase your car for ₹3 lakh. So agreeing upon same thing in the same sense है. तो यहाँ पे free consent है. ध्यान में रहे आपको. A threatened to shoot the B if he did not give 2,000 and B agree. Again, agreement is under coercion, physical force है ना. So no contract is created. So 2 points right now we discussed. Okay, from section 10 for creation of a valid contract. Offer and acceptance must be there and free consent of the parties must be there. Okay, remaining points